है, उनके पास पैसे का स्ट्रेंथ है। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके संस्था में कितने सारे इंजीनियर्स, कितने सारे टेक्नीशियंस, कितने सारे अकाउंटेंट, कितने सारे स्किल्ड पीपल, स्किल्ड वर्कर्स लगे हुए हैं। So they have a very vibrant team, pool of human resources, men, money, material. अगर उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में, सही चैनल मतलब सही रास्ते में इन्वेस्ट किया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किया जाएगा, आउटपुट जनरेशन के साथ साथ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, सो देयर विल बी इनकम जनरेशन, आउटपुट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड सो देयर विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So we need to be as businessmen socially responsible, because businessmen, especially the very rich businessmen, उनके पास ऊपर वाले ने बहुत सारा ब्लेसिंग दिया है, बहुत पैसा दिया है, और भी दूसरे तरह के संसाधनों पर उनका अधिकार है, और इसलिए वो इस सारे रिसोर्सेस को उचित तरीके से अगर लगाएंगे तो इससे राष्ट्र की प्रगति होगी, सोसाइटी की वेलफेयर प्रमोट होगी. सो बिजनेस नीड टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर इन अ चोजन पोजिशन, दे हैव द वेल्थ विद देम. Please write down. I have only dictated one point in the long-term interest. Now I am dictating the second one, and that is avoidance of government regulation. Avoidance of government regulation. Restrictions, restrictions and regulations. Restrictions and regulations. Limit the freedom. Limit the freedom. If a businessman, if a businessman is socially responsible, he does not, he does not, मैम बिजनेसमैन से रिपीट कर सकती हैं? okay, if a businessman is socially responsible, he does not adopt wrong means. If a businessman is socially responsible, he does not adopt wrong means, is not involved, is not involved in malpractice, is not involved in malpractice, but is following, but is following the right path, but is following the right path, he will be subject to, he will be subject to less and less of regulation, less and less of regulation. यानी अगर हम राइट पाथ पर हैं तो हम पर प्रतिबंध कम से कम लगेंगे, तब हम ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करके अपने बिजनेस गतिविधि को चला पाएंगे. Now the next one you write also.
availability, availability of resources, resources with business, with business. Business institutions have, business institutions have valuable, valuable financial, financial and human resources, and human resources. If these men and material, if these men and material are utilized, are utilized in proper manner, in proper manner, it shall lead to, it shall lead to economic development. It shall lead to, मैम मैन एंड मटेरियल की बात बताइए ना। ठीक है, if men and material are utilized in proper manner, if men and material are utilized in proper manner, it will lead to economic development. It will lead to economic development. There will be, there will be more of jobs. There will be more of jobs. Rise in level of income. Rise in level of income. More of output. More of output. And better standard of living. And better standard of living. Okay. Now I discuss few more points and then this particular topic shall be complete. See, another is better environment for doing business. So let us first understand what is better environment for doing business. देखिए, कोई बिजनेसमैन भी तो इंसान ही है, वो अपने पर्यावरण से, बिजनेस एनवायरनमेंट, अदरवाइज लार्जर एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होता है. See, you are a businessman, and if you are obeying the at least minimum wages act, अगर आप बिजनेसमैन के रूप में एक फैक्ट्री, एक उद्योग चला रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट का कम से कम सम्मान कर रहे हैं और वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर रखे हैं, मतलब हाइजीन है, बेसिक एमेनिटीज है, रेस्ट पीरियड भी दिया जाता है, छुट्टियां दी जाती हैं, तो एज अ लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, आप संतुष्ट रहिएगा, आप खुश रहिएगा
और जब आप खुश रहिएगा ना, तो आपको वर्क करने की एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। आपका कंप्लेन और ग्रीवांस बिज़नेसमैन से बहुत कम रहेगा, नहीं रहेगा। तो आप विलिंगली कोऑपरेट कीजिएगा बिज़नेसमैन से। इससे आपको भी फ़ायदा और बिज़नेसमैन को सबसे अधिक फ़ायदा। बिज़नेसमैन को बहुत अधिक फ़ायदा होता है, इसलिए जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं ना, जैसे टिस्को वगैरह, उनका इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का पॉलिसी होता है। पीपल आर वेरी सैटिस्फाइड। देश से कि एक पब्लिक सेक्टर में जिस तरह की सिक्योरिटी होती है, उस तरह की सिक्योरिटी और निश्चिंतता टिस्को के जॉब्स में रहती है, क्योंकि वो लोग बहुत सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपका लेबर अगर संतुष्ट है ना, तो आपको क्यों करेगा तालाबंदी, क्यों जाएगा स्ट्राइक पर, क्यों करेगा कंप्लेन। तो अगर इस तरह का माहौल आपके बिजनेस इंस्टीट्यूशन में है जो आप चला रहे हैं, तो हर आदमी विलिंगली कोऑपरेट करेगा। स्ट्राइक, लॉकआउट्स, ये सब जो नेगेटिव चीजें हैं नहीं होंगी। जब नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, सकारात्मक कार्य होगा। तो एज अ बिजनेसमैन आप प्रॉस्पर भी ज्यादा करेंगे। आप भी तो इंसान हैं, कम टेंशन में, कम स्ट्रेस में आप अपने फैक्ट्री को आगे बढ़ा देंगे। ये सब आजकल मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस भी क्यों होता है, चाहे मैनेजरियल वर्क हो या वर्कर के वर्क हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसहार्मनी है। और अगर पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पीसफुल एनवायरनमेंट है तो फिर आप में भी पॉजिटिविटी है और आपके वर्कर में भी पॉजिटिविटी है। That is why business needs to be socially responsible. And the last one is there are few problems which arise out of irresponsible business, like pollution, like unsafe workplace, like discriminatory practices in employment. What is that? We discuss first of all in detail. See children, business intentionally या हो सकता है unintentionally, बिना किसी नियत के, वो इनोसेंस में भी कुछ ऐसे समस्याओं को क्रिएट कर देते हैं, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आप अपनी फैक्ट्री तो चला रहे हैं पर चिमनी से एकदम स्मोक्स निकलते चला जा रहा है और सारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, और आपके फैक्ट्री वर्कर्स को तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना ही होना है। ये सोशल इल है जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी होता है। अगर आप डीलिंग करते हैं और वो ऑनेस्ट डीलिंग नहीं होती है, तो ये भी गलत है। इट इज लीडिंग टू करप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्क प्लेस अच्छा नहीं है, अनहाइजेनिक है, धूप भी नहीं आती है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ताजी हवा नहीं है, और श्रमिक 8-8 घंटा काम कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन? इससे तो सोशल समाज में इल्सी जनरेटेड होंगी। और एक और प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट में प्रैक्टिसेस, जैसे भेदभाव करें जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। अगर भेदभाव करते हैं, किसी को आप पक्षपात करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स भेदभाव, तो पीपल विल बी नेवर सेटिस्फाइड विथ यू। अगर आप इस तरह से भेदभाव करेंगे, गलत चीज करेंगे, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे और क्या कोऑपरेशन देंगे। दैट इज वाई इस तरह की प्रॉब्लम भी बिजनेस हाउसेस जनरेट ये करती हैं। रियलिटी में ये सारी चीजें होती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि एक बिजनेसमैन जो आइडियल है, उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल एथिक्स को सामने रखना चाहिए और इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। भेदभाव किए बिना अपने फैक्ट्री बिजनेस को चलाइए। वर्किंग प्लेस कम से कम सेफ हो, और इसके साथ-साथ आप पॉल्यूशन कम से कम उसमें तो मत ही कंट्रीब्यूट कीजिए। वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द अर्थ इज सफरिंग बिकॉज़ ऑफ कोई भी कारण हो, बहुत सा हजारों कारण हो सकता है, बट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो बहुत बड़ा कारण है। So now let us close this and write down this particular point, the next one, better environment for doing business. Better environment for doing business. A business operates, a business operates
in a society, which is full of complicated, problems. Hence, it is argued that the business system should undertake such activities डैट द बिजनेस के बाद फिर से रिपीट कीजिए ना. that the business system should undertake such activities which are beneficial for the society at large. Otherwise का मतलब अगर बिजनेस ऐसा नहीं की तो, otherwise its own survival will be endangered. Now the last point. The last point goes like this. Holding business responsible for social problems. Holding business responsible for social problems. There are few problems which usually crop up when the business is irresponsible. When the business is irresponsible, they are environmental pollution. Unsafe workplace, corruption in public institutions,
corruption in public institutions, and discriminatory का अर्थ हुआ भेदभाव करना, and discriminatory practices in employment. अपने अंडर जो लोग काम करते हैं उनमें पक्षपात करें, भेदभाव करें, तो ये गलत है. Hence, a business needs to be very responsible and as a socially responsible entity try to act in a manner which helps to overcome such problems. That is all. Which helps to overcome such problems. That is all for today. अब देखिए एक समराइज कर देते हैं और दूसरा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कॉन्सेप्ट. So today what have we studied in this class? First of all, like you may have a short question, what is social responsibility of business? Then you will go like that. The social responsibility of business means that a business should take such decision and act in a manner which is desirable, which is beneficial for society. अगर क्वेश्चन जैसे आता है एग्जामिनेशन में कि क्या आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस से समझते हैं, तो आप यह लिखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस से हम ये समझते हैं कि एक बिजनेसमैन के रूप में ऐसा कार्य करना चाहिए और ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव से मेल खाता हो, सोसाइटी में वेलफेयर प्रमोट करे. एंड देन प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट तो इम्पॉर्टेंट है ही, कमर्शियल वायबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, बट इट शुड नॉट बिकम द ओनली ऑब्जेक्टिव. प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव है परंतु और भी लक्ष्य लेकर के बिजनेस को चलना होता है. एंड देन वी डिस्कस्ड ऑल दिस अबाउट व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच सपोर्ट सोशल रिस्पांसिबिलिटी. अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, बिजनेस नीड नॉट इंडल्ज इटसेल्फ इन सोशल रिस्पांसिबिलिटी इशू. कुछ बिजनेसमैन कहते हैं कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी, हम लोग सोशल साइंटिस्ट नहीं है तो इससे हम लोग दूर रहे. तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है और फिर डिस्कस करेंगे कि आखिर रियलिटी में क्या होना चाहिए.